किसानों द्वारा जारी इस आंदोलन और इस धरना प्रदर्शन के बीच सक्षम न्यूज इंडिया के संवाददाता सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे हैं। देखना यह है कि किस प्रकार से सिंधु बॉर्डर पर किसानों की अपनी मांग यानी कि कृषि बिल को लेकर यह धरना प्रदर्शन है। जब हमारे संवाददाता ने किसानों से बात की तो क्या कुछ कहना था मौजूद वहां पे किसानों का, देखिए इस रिपोर्ट में। जी आप लम्मा पावे भाषण इधर भी गर्मी च आना भाषण अगे आंदा ना जो मोदी सरकार दे रामन जी ताई लाते ही क्यों लाते ही ओदा कारण की इसे कानून का। आप कहाँ से आए? मैं सर रायकोट शहर से। कितने दिनों में आपको यहाँ पे? मैं 26 का आया हूँ, 26 तारीख का। क्या आपको मान क्या है अपना मांग मांगी जाएगा? हाँ जी, इसलिए तो आए घर से, मांग मंगवाने के लिए तो आए। घर के भी खेती बाड़ी का क्या हाल है वहाँ पे? खेती बाड़ी चल रहा है जी, फसल उगा के आए हैं, अभी बेले हैं इसलिए तो बैठे हैं इधर। जितना टाइम लगेगा इधर ही रहेंगे, प्रोग्राम के साथ आए हैं बिल्कुल। हाँ जी। और लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं जो बीस बोरी आप ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते, हम कोई ऐसे बयानबाजी नहीं करना चाहते, हम तो शांतमय बैठे हैं। सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मांग ली जाए हमारी और हम चले जाएंगे इसी के डिपार्टमेंट। आज मीटिंग बुलाई है केंद्र सरकारी मंत्रियों ने। हाँ, चल रही क्या उम्मीद करते? देखो जी, उम्मीद तो यही करते हैं पहले दिन से कि हमारे हक में हो फैसला, और क्या उम्मीद करनी है। सक्षम इंजीनियर से बात करके आप लोगों को बहुत-बहुत कॉलिंग केंद्र सरकार की तरफ से उनके कुछ लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो किसानों का आंदोलन है उसमें बाहरी लोगों का समर्थन है, विदेश यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। इस पर आप लोगों का देखो जी, किसी भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं, साडियां ये आप दियां मंगां आ, साडे आप दे हक आ, साडे सूबे दे हक आ, साडे किसानां दे हक है। ये जिन्ने भी लोग इस अंदोलन च आए ये अपने हक लैण लई आए आ, किसी देश के कहे काहे जां किसी होर ताकत दे नाल इत्थे आके नहीं बैठे। असीं अपने हक लैण लई ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, अपने हक ਲੈਣ वास्ते। 2 दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के फेवर में उनके भलाई के लिए बनाया है। इस पर आप लोगों को क्या आपत्ति है? ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ 10, 20, 2000, 10,000, 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਤੈਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਨਾਲ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਮਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜੰਮੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਤਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਢਹਿ ਹੋ ਜੂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਫਰਮਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਨਿਰਮਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਨਿਰਮਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ, ਪਰਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖ।
ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੌਮ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਨ ਸਮੂਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਧਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਖੂੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ठीक आ रहे हैं आने वाले समय में आ रहे ਫਿਰ ਇਹ ਠੰਡਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਰਾਬਾਂ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਲੂਆਂ ਕੋਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਠੰਡ साडा की कुछ नहीं बिगाड़ सकी, आ ठंड साडा की बिगाड़ लोगी, ऐसी सानू कुछ परवाह। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे देश के अनेक स्थानों से किसानों को प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए लोग आए हुए हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश से हम भी आए, आइए जानते हैं इन मुद्दों को लेकर उन्हें साथ किसानों का देने के लिए धरने पर बैठे हैं। और आज किसानों ने, किसान नेताओं ने आह्वान किया है कि एक दिन की ये भूख हड़ताल करेंगे ताकि सरकार को जल्दी से जल्दी। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कि लोकतंत्र का अपमान करते हुए राज्यसभा में धक्के से इन 3 काले कानूनों को, किसान विरोधी कानूनों को जबरदस्ती पास कराए। और मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कुचेष्टा जो उन्होंने की है इस जनतंत्र का अपमान कर कर, वो असहनीय है। और ये सिर्फ किसानों के लिए खतरा नहीं है, ये देश के लिए खतरा है, भारत माता के लिए खतरा है। और मैं तो देशवासियों से कहूंगा कि एक बार फिर 1947 के बाद ये जो लड़ाई आज किसान लड़ रहा है वो सिर्फ खेती के लिए नहीं लड़ रहा है, ये देश की दूसरी आज़ादी के लिए लड़ाई चालू हमने की है। और पंजाब के हमारे किसान भाइयों ने सरदार भगत सिंह की तरह इंकलाब जिंदाबाद का नारा उस समय दिया गया था। आज किसान बचाओ देश बचाओ का नारा एक बार फिर पंजाब के किसानों ने दिया है। मैं समझता हूं देश के किसानों को एक होकर इन 3 काले कानूनों को जब तक मोदी सरकार वापस ना ले तब तक मैं समझता हूं अपना संघर्ष जारी रखना होगा। और यही हमारा संकल्प है, वरना मोदी सरकार को मैं समझता हूं जनता उखाड़ कर फेंक देगी। कुछ संगठन इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये जो टुकड़े टुकड़े गए और अन्य लोगों का ये आंदोलन है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जो हमारे भारत माता के सच्चे बेटे थे उनको भी उस समय आतंकवादी कहा जाता था। और उस समय आप इतिहास जानते हैं, आरएसएस जो कि नरेंद्र मोदी जी का मातृ संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है, ये अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत माता को गुलाम बनाने की साजिश रच रहा था। तो ये देश को पता होना चाहिए कि कौन गद्दार है और कौन देशभक्त है। किसान से बड़ा मैं समझता हूँ इस मातृभूमि का कोई बेटा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। और ये आंदोलन किसानों का है और ये आंदोलन देशभक्तों का है। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, वो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। अंबानी और अडानी का पूंजीपतियों की जेब में वो किसानों को रखना चाहते हैं। लेकिन किसान मातृभूमि के, मैं समझता हूँ मातृभूमि के पास रहेगा, अपनी मातृभूमि मिट्टी के पास रहेगा, वो अंबानी और अडानी के का गुलाम नहीं बनेगा। ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਕਰੀ ਲਗਾਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। कहाँ से आप आए हैं? ਗੁਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਈਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਚੱਕ ਦੋ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਥੰਮ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਹਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰਦਾਰ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਗਾੜੀ ਫੱਟ ਕਰਕੇ ਮੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਡਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਸੀਆਰਡੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਣ ਡਈ ਆ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਹਰ ਗਾੜੀ ਮੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੀਆਰਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕੱਲੀ ਖਬਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ? ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੀਆਰਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। क्योंकि बार बार हर पत्रकार ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ बार बार लेकिन मोदी सरकार कहती है ये बिल किसानों को हित है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं मेरा ये कहना वा जो अमृत शाह बैठा ही नाल इन्हां दे, उन्हें क्या इन्हां किसान भरावां ने क्या ते तां गलती कीती, उन्हां क्या गलती कीती असीं पुछिया नहीं ते फिर उत्थे गलत नहीं सरकार जापदी? क्यों बार बार आप हर बंदे ये सवाल करते हैं कि ये गल तो क्यों गलत होण डिया? वो आप कहण डिया कि असीं नहीं किसान भरावां नूं पुछिया, असीं गलती उन्हां गलती भी मंगी आ। ਇਹਦਾ क्यों नहीं वापस लेंदे, क्यों नहीं रिजल्ट कढ़दे? तो जब तक वापिस नहीं हो जाता बिल या इसमें कोई संशोधन नहीं होता तो आप लोग क्या करना चाहिए? देखो जी, मैं तो फिर पत्रकार जो मीडिया जिन्ना भी मीडिया वा उन्होंने मीडिया के मध्य रही उन्होंने मीडिया वाले मैं दसना चाहना वा ते बार बार इस गल नूं ना लम्मी पाईए। सीआरडी विभाग नूं भी दसना चाहना इस गल नूं, क्योंकि ये दो चीज़ां वा जिहड़ियां उधर ही रजावंती नाल राजीनामा करा दिंदियां। और कोई जे कोई आखे ना मैं उधरों प्रधानमंत्री आके राजीनामा, जिहड़ा पत्रकार आ ते सीआरडी विभाग आ ये जल्द तो जल्द राजीनामा बड़े बड़े फैसलिਆਂ ਦੇ राजीनामे करा दिंदा है। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊ ਨਾ, ਜੇ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਈਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। जल्द से जल्द समाधान हो। ਹਾਂ ਯਾਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ, ਧਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਏਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਹੀ ਟੱਕਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ 18 दिन हो गया आप लोगों का 19वां दिन है 19वां दिन। केंद्र सरकार के भीतर में कोई सकारात्मक कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया जिससे आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग सारे दर्शकों सुनने वाले को सारे को सत श्री अकाल, सारे को नमस्कार। ऐसा है कि भावें 18 दिन हो गया है ते ये लंबा संघर्ष भी चल सकता है। जो संघर्ष करने वास्ते आए हैं वो थकन वाले नहीं हैं और ये संघर्ष कले सिखों का पंजाब का नहीं रहा है। ये संघर्ष सारे हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, आढ़तियों का, दुकानदारों का, बंड व्यापारियों का, सबका हो गया है। और इतना ही बस नहीं, ये जो आंदोलन है ये इंटरनेशनल हो गया है। 92 देशों ने इसकी सपोर्ट की है। इस करके जो मोदी की अड़ी है दानी बानिया के जो उन्होंने वायदे किए हुए वो अजे अड़िया होया, पर ये जो अंदोलन है ये होर बढ़ेगा जी। ये उसमें झुकना पेगा और उसमें मनना पेगा। ये जो काले कानून ने उसमें वापस करने पैणगे तो वापस लैने पैने।
अभी 2 दिन पहले ही एक खबर आई थी कि कुछ किसान संगठन केंद्र सरकार के फेवर में ये बिल आपका ठीक है, तो उस पर आप लोगों को क्या कहना है? नहीं, कोई किसान उन्होंने फेवरेट नहीं है, सारे इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही बात करते हैं, जो बुलाते हैं इकट्ठे ही जाते हैं और उनकी रोजाना मीटिंग होती है। कोई ऐसी बात नहीं, सरकारों के जो मीडिया है जहाँ सरकार एक तरह काम शाम दान भेद वो जान के मतभेद की बातें बताते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं। अभी कोई मीटिंग नहीं है, कौन का सत्ता पत्र अभी नहीं आया कोई, जो आएगा तो किसान जाए। तो आप लोग क्या ठान के आए सर, क्या ठान के क्या है? तो जो सारे संघर्ष कर रहे लोग ये ठान के आए हैं कि उन्हें चਿਰ अंदोलन नहीं खत्म होएगा और नहीं समाप्त होगा जिन्ना चिर जिस काम लिए ये अंदोलन पूरा नहीं होगा और खत्म नहीं होगा, वो कानून जो बनाए जो खत्म नहीं होते उतना चिर संघर्ष जारी रहेगा। महीना लगे, 2 लगे, 6 लगे, साल लगे, ये संघर्ष चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। अलग अलग स्थानों से किसान आए हुए हैं, उन किसानों के संगठन को कुछ साधु समाज भी हमारे समर्थन दे रहा है। ऐसे ही एक साधु समाज से जुड़े हुए हमारे साथ हैं, और बात जानते हैं कि उनका खाता जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम महान जनरल सेक्रेटरी और आज हम यहाँ जो आए हैं, हमारे प्रधान जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ज्योतिषपीठाधीश्वर और द्वारका उन्होंने आदेश लगाया था कि आज का जो समय है वो बड़ा कष्ट का समय है। किसान पढ़ाई करने के ऊपर जो कि हमारी सरकार है उसकी वजह से जो हमारे किसान भाई पहले भी कर रहे थे वो भी तकनीकी का नहीं हम सही कर सके और इसके साथ सारे देश के सभी को सभी करके किसानी खत्म कर देंगे और किसानी नहीं होगी तो पैदावार कहाँ से होगी, अगर पैदावार नहीं होगी तो फिर हम अन्न खाएंगे कहाँ से। उसके कारण देश से उन्होंने हमें आदेश दिया कि ये आप जाके किसानों के साथ बताइए भी समाज आपके साथ आपके साथ खड़ा है जब तक आपकी ये मांगे पूरी नहीं होगी। हम कल से यहाँ पे मेरे साथ रिक्शा जी आ रही है जी, हेमंत सावंत और हेमंत सिंह बराड़, ये हम सभी और हमारे ताऊ हम सभी यहाँ पे कल से अनशन पे बैठे हुए हैं और हमारा अनशन 10 दिन का आश्वासन दे रहे हैं कि अंदर अंदर ये मांगे पूरी करनी है, नहीं तो हम इसी अनशन को मरण वर्ष में बदल देंगे और हम मरण वर्ष पे बैठ जाएंगे। पानी तक भी त्याग देंगे, मांगे न पूरी होंगी। अगर हमें शहीद होगा पड़ा इसका कारण एक ही कारण है, कारण यही है भी अडानी समाज और जो 10 आज उनको हमारे साथ बस कॉपरेट कराने ऊपर आ जाए, उनकी जेबें भरें और हम इस देश के ऊपर राज करें पैसे के जोर से। ये कभी नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कभी ऐसे पैसे के ऊपर जोर नहीं किया जा सकता। जब लोकतंत्र एक तरफ हो जाए दूसरी बात ये है ना, अगर ये स्टेज पे बोल सकती हैं तो लोग वायरल करेंगे स्टेज पे। अगर स्टेज पे तो बात आप कह रहे हैं आसान नहीं है देश में, पहले भी क्या कहता हूँ, अगर देश को बचाना है तो किसान को जिंदा रखना है। अगर स्टेज पे बोल देंगे ना लोग वायरल कर लेंगे, कब से कर लेंगे। मुद्दों के साथ साथ ये बिल तो वापस होने चाहिए और किसानों का जो कर्जा है कॉपरेट घरानों का आप कर्जा माफ कर सकते हो, किसानों का कर्जा नहीं माफ कर सकते जो हमें आगे देता और जिस समय से हम जीते। आज मैं तो कहूँगा किसान भाइयों को अपना कर्जा भी माफ करवाएं, कर्जा भी माफ करना चाहिए सेंट्रल सरकार को, फिर उठे यहाँ से, नहीं तो हम यहीं पर मरने पे अपना प्राण त्याग देंगे। क्या कहना चाहिए आने वाले समय में और साधु समाज संत समाज और साधु समाज संत समाज तो आएगा ही आएगा जी। पूरे जितने भी हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी धर्म से कोई भी संत वो भी
हिंदुस्तान के जितने भी हमारे शिष्य हैं, कोई भाई है, कोई जनता है, कोई नौजवान है, युवा है, बुजुर्ग है, वो भी सब आएंगे। हिंदुस्तान के सभी जनता की किसान मोर्चा के साथ समर्थन है और इस मोर्चा को कामयाब करने के लिए सभी हिंदुस्तानी एक हैं। और ये मोदी सरकार को आज ये वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लोहे को लोहे काटना होता है और ये हम लोहे वाले खुद तो हैं, अपने आप को लोहा समझते भी हमको कोई नहीं काट सकता। बस दूसरी तरफ भी लोहा खड़ा हो गया है, वो खड़ा हुआ लोहा हिंदुस्तान की जनता आपको काट देगी और इसको जो भी गलत कानून किए लाए हैं। सिंधु बॉर्डर पे हम लोग इस वक्त हैं और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया। किसान आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। हमारे साथ हरियाणा के ही है ताऊ। आइए जानते हैं किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहते हैं। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ भी आंदोलन देखा। 1947 से पहले मेरी उम्र थी और वो जितने जुल्म किसान पर उस अंग्रेजों के ज़माने में मैं नहीं थी। देश की आज़ादी किसान और मजदूर ने ली। ये है ना आज़ादी से कम है जो ये काले बिल आए हैं किसानों पर। ये एक देश के ऊपर किसानों को मारने की साजिश है। अंबानी और अडानी के साथ मिलकर के इसने है ना ब्यूरोक्रेट को है ना इस पर वो लगाया गया है। मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मैंने है संसमन में BA की और मेरी आज उम्र है 85 साल है। मैं 3-4 भाषा पढ़ता हूँ, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है संगरूर होता था। ये इस देश को कुचलने के लिए, इस गरीब किसान को, मजदूर को मारने के लिए, जो कि हमारा किसान है आत्महत्याएं कर रहा है और उसके बाद में भी भूखमरी से हम आप खाते हैं और सभी को खिलाते हैं। इस देश में 80% नहीं, मैंने वो कहता हूँ अंदाता पर 100 के 100% लोग हैं वो आधारित हैं। लेकिन इसलिए इस मोदी ने एक अपनी उसको ब्यूरोक्रेट के अंबानी और अडानी में जो कि चुनाव 14 में हुआ, उस 14 में इनसे पैसे लेकर के फंडिंग करते हैं इसको और इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। इस देश के किसान और मजदूर को मारना चाहते हैं। अंग्रेजों ने भी ऐसी हरकत नहीं की। हमारे इस देश को जो कि आंदोलन, ये किसान का आंदोलन है, ये जो चिंगारी है पंजाब से उठी है, तो पंजाब के जो लोग हैं किसान वो हमारे भाई हैं। हम सारे मिल करके 36 बिरादरी के भाई हरियाणा प्रदेश के कंधे से कंधा मिला करके यहाँ हमारी ट्रालियां राशन के साथ और हमारे बच्चे बेटियों के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन जब तक ये काले कानून खत्म नहीं होंगे वापिस हम घर नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार क्या आप लोगों सरकार परीक्षा ले रही है ये लेकिन हम उस परीक्षा का जवाब है न लोकतंत्र के अंदर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। इस भारत में एक शांति से चला जाता है, लेकिन शांति हमें नजर नहीं आ रही। हमने सारे तरीके अपनाए, सारे देश के मैंने 4 भाषा पढ़ी, लेकिन मैं आज 27 भाषा पढ़ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, पश्चिमी बंगाल सारे उससे है न लोग आए हुए हैं। लेकिन तब बीजेपी के जो मंत्री हैं बोल रहे हैं कि आप लोग जो किसान लोग हैं आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने जो बिल पास हुआ वो हमारे बेटे सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, मेरे खुद 2 बेटे हैं वो हाई कोर्ट चंडीगढ़ में वकील हैं। तो क्या कहेंगे मोदी जी के लिए आप? ग्रेजुएट हूँ, लेकिन ये कौन कहता है नहीं मोदी जी बोलते हैं? लेकिन ये है न ऐसी कौन सी भाषा है जो हम नहीं पढ़े? इसको कौन सी भाषा आ गई? ये दूसरे देश की भाषा है क्या? ये देश को कमजोर करना चाहता है। जो ये आतंकवादी बताता है इन भाइयों को, कौन बताता है? सारे के सारे आतंकवादी हैं किसान। यदि ये इनको बताता है, लेकिन हम है न इस देश को टूटने नहीं देंगे, इस देश को जाने नहीं देंगे। लोकतंत्र में वोटों का राज होता है। हम 80% जब ये कहते हैं ये काले कानून हमने मांगे हैं क्या? लेकिन ये कानून किसी ने नहीं मांगे, क्यों थोप रहा है हमारे पर? हमारे को ये हमारी खेती पर ही। लेकिन बीजेपी ये बोल रही है कि जो आपकी चिंगारी है वो कुछ दिन की चिंगारी वो खत्म हो जाएगी कुछ दिन बाद। ये कह रही है कि ये किसानों के हित के लिए हमने कानून बनाया है। अब हमारे को किसान को सर्दी है, सर्दी में हमें पता है भाई मजबूत कमीज पहनना चाहिए, जैकेट पहननी चाहिए। और ये हमें कहे तुम्हें पानी की बुछारें दे दूं, पानी की बुछारों दे दो। जब हमें ट्रैक्टर की जरूरत है, हमें बुलडोजर क्यों दे रहा है? इसके मन के अंदर काला है। ये इन किसानों को खत्म करना चाहता है, इनको है न तबाह करना चाहता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो आजादी ली
उस आजादी को कायम रखने के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन काले कानून जब तक खत्म नहीं होंगे हम वापिस नहीं जाएंगे। जहाँ हम बैठे ये हरियाणा प्रदेश की धरती है, यहाँ पर ही कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर है ने पांडवों और कौरवों की जो लड़ाई हुई, उसको पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, लेकिन वो ये कहता सुई नहीं टिकने दूंगा। क्या हाल हुआ, उसके अंदर कौरव हारे और है ने पांडव जीते। लेकिन इसलिए किसान जो है वो 100% है। लेकिन ये 3 आदमी हैं, मोदी, अंबानी और अडानी। 3 जीतेंगे या 97 जीतेंगे। लेकिन मोदी जी बोलते हैं ताऊ जी, मोदी जी बोलते हैं कि आपके लिए जो बुराड़ी मैदान है उसमें आपके लिए खाने की व्यवस्था कर दी गई है, पहनने की व्यवस्था कर दी गई है, तो आप क्यों बैठे ठंड से? उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि उसको देश को तोड़ना चाहता है, बेचना चाहता है। वो अमृतसर में चलिए वाला बुराड़ी क्यों ले जाए? हमारी धरती है ये, हम यहाँ बैठेंगे। उसमें वो कौन रोकने वाला होता है? दिल्ली हमारे पूर्वजों की वो है, हमारे है न किसानों की जमीन पर ये दिल्ली बसी है। इस बुराड़ी ले जाकर वो दलियों वाला बाग बनाना चाहता था, लेकिन हम पढ़े लिखे बहुत सियाने हैं। हमने कहा हम अपनी धरती पर बैठेंगे। यहाँ आपने जो चलानी है, आपने बुछारें चलाई, आपने लाठियां चलाई, आपने सड़कों को तोड़ा, लेकिन वो पंजाब का, हरियाणा का किसान और मध्य प्रदेश के किसान मेरे पास, मेरे बेटे बैठे हैं, राजस्थान के बैठे हैं, यूपी के बैठे हैं। हम सब लोग एक हैं। हमारा इससे आगे धर्म है, पहले हम भारतवासी हैं। अगर आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।